رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. یہاں پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، مشورائے اعظام، حاضرین مجلس، شور نہ مچانے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آئیے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے آقا و مولا جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و احترام کے ساتھ اسلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بواضح بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو عورتیں پیچھے پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں یا لڑکیاں، جو لڑکیاں بیٹھی ہیں یا عورتیں بیٹھی ہیں، عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے. ایسا نہیں خالی چہرہ ڈھک لو، آپ اپنی آواز کو بھی بچاؤ اور شور غل نہ کرو. آپ آئی ہیں کہاں اور کیا لینے کے لیے آئی ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ دے کے یہاں سے آپ کو جانا پڑے. آپ توبہ کیجئے اور زیادہ باتیں نہ کیجئے، بالکل زیادہ نہیں، بالکل باتیں نہ کیجئے. آپ کی آواز بھی پردے میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ لوگ خاموش رہیں. حضرت کی تقریر رک جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہاں، اس لیے آپ لوگ خاموش رہیں. قصور ان کا نہیں ہے، قصور شربت پلانے والوں کا ہے. تھوڑی دیر رک جائیے، اس کے بعد شربت پلائیے. ایک مرتبہ پھر رسول اور آل رسول پہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. دو تین اشعار آپ سماعت کریں، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ. صبر رضا کا جام پلایا حسین نے، صبر رضا کا جام پلایا حسین نے، صبر رضا کا جام پلایا حسین نے، اور مردہ دلوں کو پھر سے جلایا حسین نے، مردہ دلوں کو پھر سے جلایا حسین نے. اور حضرات یہ شعر اتنا اچھا ہے کہ انشاءاللہ مچل جائیں گے. ذرا پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. کربلا میں دین محمد کے باغ کو، کربلا میں دین محمد کے باغ کو، ارے سر دے کے اپنے خون سے سینچا نعرے رسالت، شہدائے کربلا، نواسے رسول. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر دے کے اپنے خون سے
پہنچا حسین نے. اور چونکہ امام کا ایک امتحان تھا اور نہ کون ان پہ ظلم ڈھا سکتا تھا، وہ شعر میں سماعت کرے کہ آل رسول، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ. آل رسول پر کوئی کیا ظلم ڈھا سکے، آل رسول پر کوئی کیا ظلم ڈھا سکے. لیکن خدا کا وعدہ نبھایا حسین نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کا وعدہ نبھایا حسین نے. صبر و رضا کا جام پلایا حسین نے. آخری شعر سماعت کیجئے. ماشاءاللہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے اور بڑی دل جمعی سے لوگ سنتے ہیں، اس لیے سنانے میں بھی مزہ آتا ہے. الحمدللہ آخری شعر سماعت کریں کہ مردہ دلوں کو پھر سے جلایا حسین نے. آخری شعر حضرت توجہ چاہوں گا کہ عبرت ہے مومنوں کے لیے ذکر کربلا. عبرت ہے مومنوں کے لیے ذکر کربلا. عبرت ہے مومنوں کے لیے ذکر کربلا. اور سجدے میں سر جھکا کے کٹایا حسین نے. سجدے میں سر جھکا کے کٹایا حسین نے. لیکن خدا کا وعدہ نبھایا حسین نے. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. بولو بولو. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اور قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا، بول دو سبحان اللہ. اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول. بول دو سبحان اللہ. اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول. اور تڑپی ہے تجھ پہ لاش
जिगर गोशे बतूल और मजलूम के लोहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने लगे हुसैन। कुर्बान जाऊं, रब तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग खुदा की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। यही वजह है कि हम हुसैन का मातम नहीं करते बल्कि हुसैन का जिक्र मनाया करते हैं। हुसैन का मातम इसलिए मेरा हुसैन कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक वो जिंदा ही रहेगा। इसलिए मेरा हुसैन जिंदा है, हुसैन के गुलाम जिंदा है। अब आपको अंदाजा होगा हुसैन ने अपनी जान क्यों दी। हमें इसका पता लगाना जरूरी है कि हुसैन ने अपनी जान क्यों दी, आखिर वजह क्या थी। हुसैन से मुतालबा था, ए हुसैन हमें सर मत दो, हमें अपना हाथ दे दो, यजीद के हाथ पे हाथ रख दो। इमाम अली मकाम ने यजीदियत की बैत से इनकार किया था। हमें ये सबक दे रहा है मैदाने करबला कि बातिल के सामने हमें सर नहीं झुकाना है। मेरे इमाम ने कहा था, ए यजीद सुन ले, ये पाक हाथ किसी नापाक के हाथ में कैसे जाएगा। अल्लाहु अकबर। इमाम ने यजीद पलीद की बैअत से क्यों इनकार किया था? इसलिए इनकार किया था कि यजीद पलीद जानी था, शराबी था, अय्यास था, बददियानत था, बैतुल माल का खाइन था, हुदूदुल्लाह शरीयत को तोड़ने वाला था, मुहर्रमात को हलाल समझता था। मेरे इमाम ने कहा नहीं, मेरा सर तो कट सकता है मगर बातिल के सामने झुक नहीं सकता। इसके लिए हमें मदीना शरीफ क्यों न छोड़ना पड़ी। यजीद की तरफ से बैत का मुतालबा जोरों पर था, नवासे रसूल की जानिब से इनकार था। बिलाखिर आपने फैसला फरमाया कि मैं मदीना पाक से बाहर चला जाऊं, इसलिए कि यजीद जबरो तशद्दुद पे तुल चुका है। वो हर कीमत में अपनी इस्लामी हुकूमतों की जड़ें मजबूत करना चाहता है। मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है कि मेरे होते हुए शहर रसूल की मुकद्दस गलियां खून से रंगीन हो। इसलिए हुसैन ने फैसला कर लिया मदीना शरीफ छोड़ने का। इंसान आज अपने वतन को छोड़कर आप बंबई आए हैं तो मजबूर मसरूर होकर नहीं आए हैं बल्कि मजबूर होकर आए हैं कि देश में जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं, मेरा आका हुसैन ने मदीना छोड़ा इसलिए कि ताकि नाना की मुकद्दस शहर की बेहुरमती न होने पाए। मेरे इमाम अपनी बहन ज़ैनब से इरशाद फरमाया, ए बहन आज मेरा दिल चाहता है कि रात जी भर के नाना जान के रोज़े अक़दस पे फातिहा खानी कर ले। सुभान अल्लाह। अम्मी जान के कब्र अनवर पर फातिहा पढ़ ले, नाना जान के मज़ारे मुक़द्दस पे सलाम कर दे। फिर हमें मालूम नहीं यहाँ पहुँचना नसीब हो या न हो। बहन ने भी क्या मशवरा दिया, हाँ भाई। चुनांचे दोनों भाई बहन दिगर खानदाने हाशिमी के चंद अफराद हुजरे फातिमा से रोज़े रसूल पर हाजिर हो गए। अब जरा सुनो सुनो, इमाम हुसैन का दिल उस वक्त क्या कहता होगा जब अपने नाना जान के मज़ारे मुकद्दस पे हुसैन अपने घर वालों को लेकर सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुए थे। इमाम हुसैन ने रोके कहा था, ए नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसको अपनी गोद में बिठा लिया करते थे। नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ
जिस के रोने से आप परेशान हो जाया करते थे, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने खुतबे को बंद कर दिया था। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके अपने दोस्त पे बिठाकर घुमाया करते थे। ए नाना जान, आज आपके मज़ार मुक़द्दस पे आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। नाना जान मेरे लिए दुआ फरमा दो, मैं बहुत बड़े इम्तिहान में जा रहा हूँ। नाना जान, आप जानते हो जिस जगह को आप मुसीबतों का घर फरमाया था, नाना जान आपकी शरीयत को बचाने के लिए मदीना छोड़ रहा हो। कुर्बान जाओ, तुरबत अनवर भी थलाई होगी। इमामुल अंबिया की मज़ार से आपको दस्ते शफ़क़त मिला था। ए हुसैन, जाओ, मेरी दीन की शरीयत को बचाने के लिए जाओ, ईमान की शमअ रोशन करने के लिए जाओ, करबला के मैदान में यजीदियत को निस्तो नाबूद करने के लिए जाओ। लेकिन बेटा हुसैन, जा तो रहे हो, लेकिन जाना तो आदमे इस्तिक़लाल से जाना, साबित कदम रहना, इसलिए कि तू साबिरों की औलाद है। फातिमा ज़हरा का तूने दूध पिया है, हजरत मौला अली के रगों में तुम्हारा खून है, इमामुल अंबिया का लुआबे दहन तुमने लिया है। हुसैन, जा तो रहे हो, लेकिन देखना तेरे ही आंखों के सामने तेरा जवान बेटा अली अकबर ज़िब्ह कर दिया जाएगा। लेकिन जबान से शिकवा मत लाना, मासूम अली असगर का बचपना लूटेगा, लेकिन हुसैन शिकवा मत करना, और नो मोहम्मद की लाश तड़पेगी। हुसैन शिकवा मत करना, कासिम की जवानी लूटेगी। हुसैन, देखना सब करना, तो साबिरों की औलाद है, सखी हो, सखा हंस के सर दे देना और नाना की शरीयत को बचा लेना। कुर्बान जाओ, आंखों से आंसू जारू थे। आपने एक मर्तबा नजर उठाकर गुंबद खजरा के रोजे पे देखा था, बेतहार रोने लगे। कुर्बान जाऊं, इमाम हुसैन ने रोके कहा था, देखा कि कबूतर मेरे नाना के रोजे का तवाफ कर रहे हैं, चिमटे हुए हैं। मेरे आका हुसैन ने कहा, ए कबूतरो, तुम कितना खुश नसीब हो कि तुम रोज़े रसूल की जियारत कर रहे हो। हुसैन कितना कम नसीब है कि अपने नाना का मदीना छोड़ कर जा रहा है। चुनांचे आंखों से आंसू जारी है। नाना जान से तशब्बुर की आवाज मिलती है, बेटा हुसैन, जाओ, तुम्हारे लिए दुआ है, तुम्हारा इम्तिहान है, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब व कामरान हो जाना। चुनांचे आंखों से आंसू जारी थे। इमाम अली मकाम ने अपने नाना जान के मज़ार मुक़द्दस पे आखिरी सलाम अर्ज करने के बाद वहां से हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा खातूजाने बुतूल हजरत फातिमा ज़हरा के मकाम मज़ार मुक़द्दस पे हाजिर हुए। अम्मी जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसको आप लोरियां दे के सुनाया करते थे। अम्मी जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसको कुरान पढ़ के तुमने सुनाया है, दुरूद पढ़ के तुमने जगाया है। अम्मी जान, तेरे नाज़ो प्यारों का पाला हुआ आज मदीना से दूर जा रहा है, आंखों से अश्क रवा है। अम्मी जान, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि नाना का मदीना छूट रहा है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ भाई हसन के कदमों से दूर जा रहा हूँ। नाना का मदीना छूट रहा है, तेरी तुरबते अनवर से जुदा हो रहा हूँ। अम्मी जान, मैं बहुत बड़ा इम्तिहान में जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दो कि मेरी थकी हुई बाहों पर जब मेरा मासूम अली असगर तुम तोड़ रहा हो तो मुझे सब्र इस्तिकामत नसीब हो। तेरे जवान अली अकबर का लाशा देखकर घबरा ना जाऊं और नाना जान के दीन के लिए हर सऊबत और मुसीबत को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर सकूं। अपने अम्मी जान के कब्र अनवर पे फातिहा पढ़ी, सलाम अर्ज करने के बाद पूरा खानदान अहले बैत अपने घर में आए। आने के बाद मुसल्ला बिछाया है, रात भर खुदा की इबादतें की हैं। सुभान अल्लाह, रात भर खुदा की इबादतें की है। आप अंदाजा करो, हम तो खा के सो जाते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पाते हैं। कुर्बान जाऊं, लेकिन वाह रे हुसैन, भूखा है हुसैन मगर खुदा की इबादत है, प्यासा है हुसैन खुदा का सजदा कर रहा है। अगर तुम हुसैन के मानने वाले हो तो अहद कर लो कि 5 वक्त नमाज हमारी नहीं छूटनी चाहिए, तब हम हुसैन के मानने वाले हैं। कुर्बान जाऊं, मेरा आका हुसैन
نے اپنا مصلی بچھایا ہے تہجد پڑھنے کے لیے. جیسے ہی مصلی بچھاتے ہیں قریب ہی میں ایک 8-10 سال کی بچی بیمار صغرا لیٹی ہوئی تھی. میرے امام نے اپنا ہاتھ رکھا, ایسا محسوس ہوا کہ انگاروں پہ ہاتھ رکھ دیا گیا ہے. بیمار صغرا کو اس قدر بخار تھا. میرے امام نے اپنے دستار مبارک کے پلو سے ہوا دیتے ہیں اور رخسار پہ ڈھونڈتے ہوئے آنسوؤں کو جذب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بیٹی تم یہی رہنا, اس لیے کہ میں بہت بڑے امتحان کے لیے جا رہا ہوں. میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں. وہاں پہ ہو سکتا ہے نیزوں کی بارشیں بھی ہوں گی, تلواروں کے دھار بھی چلیں گے. اے بیٹی تو سمجھدار ہے, میں اس سے زیادہ تجھے کچھ نہیں بچا سکتا. اگر تو اچھی ہو جائے گی, صحت مند ہو جائے گی, علی اکبر کو بھیجوں گا تمہیں لے آئے گا. چنانچہ اسی آشنا میں بیمار صغرا پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. گھر والے دستے شفقت پھیرتے ہیں اور صبح کے وقت ہی سحر کے وقت تمام تبالہ بیت کا قافلہ مدینۃ المنورہ سے مکۃ المنورہ کے طرف روانہ ہو گیا. سفر سے اگرچہ نہایت دشوار گزرا تھا, لیکن یہ تمام قافلہ صبر کی صعوبتیں جھیلتا ہوا مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا. ان دنوں مکہ معظمہ کے گورنر سعید بن عاص تھے. اگرچہ آپ یزید ہی کی طرف سے حاکم تھے, بنی امیہ کے ہی فرد تھے, مگر نبی کے خاندان والوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ سوائے امام علی مقام کے مصروفیات پر نگاہ رکھنے کے کسی بھی امر میں مزاحمت نہ کرتے. یہ اتنا واقعات میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کا سننا بہت ضروری ہے. صرف مسلمان یہ سوچتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی, علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی, معصوم علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی, عباس علم بردار کی شہادت کیسی ہوئی. شہادت تو سب سنیں گے آپ, لیکن اصل واقعہ جو یہ بیان کر رہا ہوں اس کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ تم بتا سکو کہ میرے امام کے ساتھ مجبوری کیا تھی. میرا امام جاتے وقت کس طرح سے گئے ہیں, مکہ سے ڈائریکٹ کوفہ گئے ہیں کہ مدینہ سے پہلے مکہ گئے, مکہ سے کوفہ گئے. چنانچہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکۃ المکرمہ پہنچے ہیں تو مکہ میں رہنے والے جتنے لوگ تھے ہر شخص کے چہرے پہ مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے. مکہ کے گورنر سعید بن عاص بڑا احترام کرتے تھے, آپ کی مصروفیات پہ صرف نگاہ رکھتے تھے. سب لوگ تعظیم و توقیر سے آپ کی بارگاہ میں پیش آتے تھے. لیکن ابھی چند ہی عرصہ گزرے تھے مکہ المکرمہ میں, میرے امام کو کہ یہ خبر اہل کوفہ میں پہنچ جاتی ہے کہ مکہ المکرمہ امام علی مقام تشریف لا چکے ہیں. اب تمام اہل کوفہ والوں نے ایک میٹنگ کی اور ایک میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ امام علی مقام کو اہل کوفہ بلوایا جائے. تمام کوفیوں نے بیٹھ کر کے ایک عریضہ تحریر کیا, ایک خط لکھا گیا, میرے امام آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائے. یزید کی برائیاں آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے اور کھلا حدود شریعہ کو توڑ رہا ہے, محرمات کو حلال سمجھتا ہے, تاریخ نماز ہے, دائر الخمر ہے, وہ اپنی ماں بہنوں سے بھی نکاح کو حلال کر رہا ہے, شرابیں پی رہا ہے, نماز تو اس نے طاق کو رکھ دی ہے, شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہو رہی ہے. ہم اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں کیسے دے دیں؟ میرے آقا حسین آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئے. ایک خط بھیج دیا گیا ہے. چنانچہ امام کی بارگاہ میں یہ خط پہنچا ہے, 2 خط آیا ہے, تیسرا خط آیا ہے. اس طرح سے 1-2 خطوط نہیں, امام کی بارگاہ میں 150 خطوط جمع ہوئے. اللہ اکبر, 150 خط آ گئے. امام ایسے ہی نہیں چلے گئے, پہلے بلایا گیا. مثال کے طور پہ آپ نے ہمیں یو پی سے بلایا کہ حضرت تقریر کرنے آئیے. یہاں آنے کے بعد اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ آپ نے نہیں کیا تو ہم کیا اسم رسوخ لے کر جائیں گے. لیکن الحمدللہ میرے سمبندت چاہے ہمارے حضرت ہوں یا مؤذن صاحب ہوں یا یہاں کے عوامی لوگ ہوں, الحمدللہ بڑی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ, اس محبت کو اللہ قبول فرمائے. جو میزبان کا حق ہونا چاہیے مہمان کے ساتھ وہ آپ ادا کرتے ہیں, اس سے میرا دل بہت خوش ہے, مطمئن ہے. اب آپ اندازہ کریں, میرے امام جب کوفہ میں گئے ہیں تو کوفہ والوں نے انہیں خط بھیج کر بلوایا, خود نہیں گئے. 1-2 نہیں 150 خط جمع ہوئے. کتنے؟ 150. اسے یاد کرنا,
میرے امام علی مقام نے اپنے احباب دوستوں سے مشورہ کیا تھا کہ بتاؤ اس طرح سے خط آ رہے ہیں، یزید وہاں بھی لوگوں کی بیعت لینا چاہتا ہے، لیکن ابھی بھی کوفہ میں کچھ لوگ ہیں، کوفے میں سب خراب نہیں تھے، کچھ لوگ ہیں جو امام علی مقام امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے دوستوں نے کہا، اس وقت حضرت عبد الرحمن تھے مکے میں، حضرت ابو سعید خدری تھے، حضرت ابو بکر تھے، اس وقت صحابی رسول بہت تھے، سب لوگوں نے منع کیا، حضرت آپ وہاں مت جائیں، آپ مکے میں رہیں، یہاں اگر یزید آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم لوگ ہیں اور لوگوں کو بلوا لیں گے، لیکن ہم رائے نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ کے والد گرامی کے ساتھ ان لوگوں نے دھوکہ کیا ہے، وہ چند پیسوں کے خاطر کوفی ایمان بیچ دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلا کرتی ہے، قربان جاؤں یعنی اس طرح تقدیر ہو چکا تھا کہ امام کی شہادت میدان کربلا میں ہونے والی ہے، اسے کون ٹال سکتا تھا؟ لیکن میرے امام علی مقام نے فرمایا نہیں، ان لوگوں کے خط میں لکھنا مضمون ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ ہمیں داخل بیعت نہیں فرمائیں گے، مجبوراً ہم یزید کی بیعت کر لیں گے، بروز حشر نانا جان سے، آپ کے نانا جان سے شکایت کریں گے کہ ہم نے خط لکھا تھا کہ حسین تشریف لائے، آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کریں گے، لیکن وہ آئے نہیں، مجبوراً ہم کو یزید کا بیعت کرنا پڑا تھا۔ معاملہ یہ تھا، میرے امام نے فرمایا نہیں، مجھے جانا ہی ہوگا۔ پھر بھی مکے کے جو اہل خدمت تھے انہوں نے کہا آپ خود نہ جائیں، اگر جانا ہی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ میں سے کسی ایک کو بھیج دیں۔ سبحان اللہ۔ کوفہ جائیں، وہاں کے تمام حالات اور کوائف سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد وہ خط لکھیں گے کہ کوفہ کا معاملہ کیا ہے، تب آپ کو ہم نہیں روکیں گے، آپ بالکل چلے جائیں گے۔ تو میرے امام نے فیصلہ کیا کہ کون جائے گا، تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ اٹھی تھی، بول دو سبحان اللہ، اے مسلم تم کوفہ جاؤ۔ چنانچہ کوفہ جا کر کے وہاں تمام کے حالات و کوائف سے آگاہی حاصل کرانا، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کوفہ جائیں یا نہ جائیں۔ چنانچہ امام مسلم اپنے قرآن فعال نام نکلتا دیکھا تو بڑی خوشی سے چہرے پہ مسرت کی لہر دوڑ گئی، اپنے بیٹے ابراہیم اور محمد کو ساتھ لیا تھا۔ حضرت امام مسلم اہل کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر اگرچہ نہایت دشوار گزرا تھا، مگر تعمیل حکم امام میں حضرت امام مسلم اس قدر شرسار تھے کہ تمام صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے اہل کوفہ میں پہنچ گئے۔ جب کوفہ والوں کو پتا چلا ہے کہ امام مسلم تشریف لے آئے ہیں تو ہر شخص کے چہرے پہ مسرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ امام مسلم کو مختار سختی کے مکان پہ ٹھہرایا گیا اور اعلان کر دیا گیا، اے کوفہ والوں سنو سنو، امام علی مقام نے امام مسلم کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اس لیے تمام کوفیوں کو چاہیے کہ امام علی مقام کے نام پہ امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا جائے۔ تو گواہی کا بیان ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے دن 12,000 کی تعداد میں امام مسلم کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کیا ہے۔ پھر دوسرے دن یہ معاملہ کوفیوں کا 40,000 تک پہنچ گیا۔ اب بتاؤ 40,000 کوفی امام علی مقام کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے۔ تو امام مسلم کو ایسا لگا کہ سب لوگ تو اہل بیت اطہار کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکے ہیں، اب امام مسلم نے اپنے بھائی امام حسین کو خط لکھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، خط لکھا۔ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ جب اپنا خط لکھے، اپنا بھائی ہو، اپنا بھتیجا ہو، جب اس کا تحریر ملے تو بالکل بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ امام مسلم نے خط لکھنا شروع کیا، میرے بھائی حسین آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئے، اکثریت نے آپ کے نام پر بیعت کر لی ہے،
تھوڑے سے لوگ باقی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی داخل بیت ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام مسلم نے جیسے ہی یہ خط بھیجا ہے، کوفہ میں رہنے والے کچھ نمک حرام لوگ تھے، ان نمک حرام نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر سے کہا تھا، اے نعمان بن بشیر، دیکھ رہے ہو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ امام مسلم کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ کہا تمہارے خیال سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا جو لوگ امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں انہیں آپ سختی سے روکو تو قربان جاؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا تھا کہ اگر اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے کی بنیاد پہ اگر یہ گورنری جاتی ہے تو جاتی رہے، ایسی گورنری کو میں لات مارتا ہوں کہ ہم اہل بیت اطہار سے بغض و عداوت نہیں رکھ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نہیں روک سکتے کسی کو۔ چنانچہ نعمان بن بشیر نے جب ایسا جملہ کہا تھا تو ان یزید کے نمکخواروں نے ایک خط لکھا یزید کی بارگاہ میں کہ یہاں امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ یزید کوفہ میں آپ کے نہ گورنری رہے گی نہ حکومت رہے گی، امام علی مقام آئیں گے تو سارا گورنری اور سلطنت ان کی ہو جائے گی۔ فوراً یزید نے ایک میٹنگ لی، اس میں وزیر سرجون سے مشورہ کر کے یہ طے کیا تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے بصرہ میں ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا جائے کوفہ کا، اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جائے۔ چنانچہ فوراً جیسے ہی ابن زیاد کو یزید کا حکم نامہ ملتا ہے، یہ خبیث بڑا مکار تھا، عیاش تھا، جیسے ہی دن خط بھیج دیا گیا مکہ المکرمہ کی طرف، لوگ کوفہ والے بیٹھ کر راستے میں میرے امام کا انتظار کیا کرتے تھے کہ امام مسلم کا خط پہنچا ہوگا، اسی راستے سے امام حسین آئیں گے۔ اس میں لوگ بات کر رہے تھے کہ پہلے میں امام کا ہاتھ چوموں گا، دوسرا کہہ رہا تھا پہلے میں چوموں گا۔ یہ مکار سیدھے اس کے پاس جیسے ہی خط پہنچا ہے، نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر مقرر ہوا، اور جیسے ہی ابن زیاد کے پاس خط پہنچا ہے یزید کا، فوراً یہ چہرے پہ حجازی لباس پہنے رات کی تاریکی میں اس راستے سے آیا ہے جس راستے میں لوگ امام کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی آیا لوگ خوشی میں جھوم اٹھے، لگتا ہے کہ امام علی مقام تشریف لائے، لیکن اس میں سے کچھ نہ میرے امام آتے تو چہرہ چھپا کر کیوں آتے؟ یہ سیدھا دارالامارات گورنر ہاؤس پہنچا ہے، اور نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھا کے معزول کر دیا جاتا ہے، اور کوفہ کی گورنری کا عہدہ سنبھال لیا۔ صبح ہوئی ہے تو اس ابن زیاد بدنہاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی تھی، بڑا وحشتناک تقریر۔ اے کوفیو سن لو، آج سے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے، آج سے میں تمہارا گورنر ہوں، اور میرا ایک اعلان سن لو، جس نے امام مسلم کے ساتھ بیعت رکھی یا ان کے ساتھ بیعت کرنے کا ارادہ کیا تو تمہارے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا، تمہارے جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا، تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے عورتیں بیوہ ہو جائیں گے۔ اس خبر کو سنتے تھے کوفی تو کوفی ہوتے تھے، لہذا سب لوگ دھیرے دھیرے اپنا بیعت توڑنا شروع کر دیے۔ شام ہوتے ہوتے تمام کوفی نے بیعت توڑ دیا۔ جب آپ مغرب کی نماز پڑھ کے امام مسلم سلام پھیرے تھے تو دیکھتے ہیں کہ پیچھے کوئی نہیں ہے، ان کے دو بیٹے ابراہیم اور محمد ساتھ ہے۔ پھر آپ کو خطرہ لاحق ہوا، میری جان کی خیر ہے لیکن کسی طرح سے اپنے پھولوں کو بچانا ہوگا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے ابراہیم اور محمد کو اپنے دوست حضرت قاضی شریح کے حوالے کیا۔ اے میرے دوست، یہ بچوں کو اپنے پاس رکھو، میری جان کی خیر
खैर है, मैं नहीं जानता था ये कूफी धोखाबाज निकलेंगे। हमारे हाथ पे आज बैत किए हैं, लेकिन इब्ने ज़ियाद बदनहात ने इसी तकरीर की है कि सारे लोग ने बैत तोड़ना शुरू कर दिया है। यही कूफियों का मामला था। कुर्बान जाऊं इमाम अली मकाम हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर चल दिए। रात हो गई, चलते चलते जब रात हो गई, हर कूफी लायूफी अपना अपना दरवाजा बंद करके महबा खाब हो चुके थे। इसी आशना में एक दरवाजा खुला हुआ था जिस पर एक ज़ईफा औरत बैठी हुई थी। एक ज़ईफा औरत का मकान था, उस ज़ईफे औरत का नाम तुआ था, उसका दरवाजा खुला था। इमाम मुस्लिम सोचते हैं या अल्लाह किधर जाएं। सब लोगों ने इमाम मुस्लिम पे दरवाजा बंद कर दिया, इब्ने ज़ियाद के डर से कहीं इब्ने ज़ियाद देख न ले, वरना मेरे साथ क्या सलूक करेगा। कोई कूफी निकल कर बाहर नहीं आया। कुर्बान जाऊं, जैसे ही आपने एक दरवाजा खुला देखा, भूखे और प्यासे मुस्लिम रात भर चलते रहे और चलने के बाद एक औरत के मकान पे पहुंचा। कहा कि अम्मी जान, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, मुझे प्यास लगी है। कहा आप कौन हैं? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। इतना सुनना था, वो औरत भी मुहिब्बे अहले बैत थी। सुभान अल्लाह। उसने कहा हुजूर, ये तो मेरी मुकद्दर है कि आप हमारे दरवाजे पे आए हैं, आप जल्दी से हमारे मकान के अंदर तशरीफ लाइए। इमाम मुस्लिम उसके मकान पे ठहर गए, आपने पानी पिया, इबादत और रियाजत में मसरूफ हो गए। जब चुनांचे थोड़ी देर के बाद उस जन्नती माँ का जहन्नमी बेटा जब घर पहुंचा है और अपनी माँ को बार बार उस कमरे में आते जाते देखा, तो बच्चे ने, लड़के ने पूछा था, ए अम्मी जान कौन है? तो माँ ने अपने बेटे से कह दिया, बेटा अल्लाह का कितना बड़ा फजल करम एहसान है हम गरीबों पर कि आज इमाम मुस्लिम हमारे घर तशरीफ लाए हुए। चुनांचे वो शकी दिल ही दिल में खुश हुआ, क्योंकि इमाम मुस्लिम की खोज थी, तलाश किया जा रहा था इमाम मुस्लिम किस घर में छुपे हुए हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा जिस घर से पकड़े जाएंगे उस घर वालों को भी सजा दी जाएगी। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुआ के मकान में हैं। इब्ने ज़ियाद बदनहात आपकी जुस्तजू तलाश में अपने सिपाहियों को छोड़ रखा था। इसी आसना में वो बदबख्त गया है, इब्ने ज़ियाद को खबर दे आया है कि इमाम मुस्लिम तो हमारे घर में छुपे हुए हैं। चुनांचे इब्ने ज़ियाद ने 500 सिपाही देकर तुआ के मकान को घेरे में ले लिया गया। और जब तुआ के मकान को घेरे में लिया गया, जब मोहम्मदी शेर को सूरत हाल का इल्म हुआ, तो आप घर से बाहर तशरीफ लाए और इनको गैरत दिलाई, ए कूफियों तुम्हें क्या हो गया है? तुम किसके खून के प्यासे हो? तुमने मेरे हाथ पे बैत किया है, आज तुम अपने मेहमान के साथ यही बुरा सलूक कर रहे हो। इसी आशना में मैंने अपने भाई को खत लिखा है। मैं नहीं जानता था कि कूफी इतने धोखेबाज होंगे, लेकिन चूंकि इससे कहा गया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अली मकाम इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तीरों की बारिशें हुई हैं, तलवारों की धारें चली हैं। इमाम मुस्लिम ने अपनी तलवार को हरकत दी है। बुकैर बिन अहमरी से जब वार हुआ है तलवार का, तो उसने एक हमला किया, इमाम मुस्लिम के आगे का होंठ भी कट जाता है और 2 दांत भी शहीद हो जाता है। इसी आशना में इमाम मुस्लिम लड़ते लड़ते फर्शे जमीन पे गिर गए। कब तक लड़ते? मोहम्मदी शेर को इब्ने ज़ियाद बदनहात के दरबार में पेश कर दिया गया और इब्ने ज़ियाद ने कहा, ए इमाम मुस्लिम अब भी वक्त है, तू यजीद की बैत को तस्लीम कर ले। इमाम मुस्लिम ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, हम किसी फाजिल व फासिल शख्स की बैत नहीं कर सकता हो। चुनांचे जालिम आपके इनकार से मुश्तइल होकर जल्लादों को हुक्म दिया, इमाम मुस्लिम की दारुल इमारात की छत पर ले जाओ और उन्हें ऊपर से शहीद करके उनकी लाश को जमीन पे फेंक दिया जाए ताकि उनकी हड्डियां चकनाचूर हो जाए। चुनांचे कुर्बान जाऊं, इन्हें दारुल इमारात की छत पर ले गया। एक जालिम ने इमाम मुस्लिम
मुस्लिम को शहीद करने का इरादा किया तो मेरे इमाम मुस्लिम ने फरमाया मुझे शहीद करने से पहले आप मेरी 3 वसीयत सुन लो। पहली वसीयत यह है कि फला का मेरे ऊपर कर्ज है, मेरी ज़िना बेचकर उसका कर्ज अदा कर देना। दूसरी बात यह है कि मेरे शहीद होने के बाद मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, उन पे रहम करना, उन्हें बाहिफाजत मदीनतुर रसूल पहुंचा देना। और तीसरी वसीयत इमाम मुस्लिम ने यह किया था कि किसी तरह से मेरे भाई हुसैन को खबर कर देना कि अब वो कूफा तशरीफ ना लाए, इसलिए कि कूफा धोखेबाज है। इतने में एक जालिम ने तलवार का वार किया, इमाम मुस्लिम का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मुस्लिम की लाश को दारुल इमारात गवर्नर हाउस से नीचे फेंक दिया गया। कुर्बान जाऊं इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शहादत हुई है तो उनके बाद पता चला कि उनके बच्चे इब्राहिम और मोहम्मद भी दोनों इसी कूफा में आए थे। अब इब्ने ज़िहाद पता लगाना शुरू किया और जिसके बास इब्राहिम और मोहम्मद ये चमनिस्ताने अहले बैत के महकते हुए फूल थे। जब कादी शुरैह को पता चला कि इमाम मुस्लिम शहीद कर दिए गए हैं, जैसे ही बच्चे को काजी ने देखा तो इनको अपनी गोद में लेके रोना शुरू कर दिया। जब इन बच्चों ने काजी को रोते हुए देखा था तो पूछा था, ए काजी बाबा आप हमारी तरफ देख कर क्यों रो रहे हो? आप ऐसे रोते हो जैसे कोई यतीम की तरफ देख कर रोया करता है। मेरे अब्बू जान खैरियत से हैं, हम यतीम तो नहीं हो गए हैं। इतना सुनना था। काजी शुरैह की हिचकियां बन गई, अपने गोद में भर लिया। कहा, ए बच्चों जालिमों ने आपके वालिदे गिरामी को शहीद कर दिया है। चुनांचे जब बच्चों ने अपने बाप की शहादत की खबर सुनी है तो दोनों बच्चे आपस में बगलगीर होकर इस कदर रोए हैं कि मलाइका में खलबली मच गई थी। हुराने बहिश्ती के दिल दरस गए थे। और जब आगे फगा शुरू हुई है तो चुनांचे इमाम काजी शुरैह ने कहा, ए बच्चों देखो तुम्हारी फिराक में आदमियों को उसने छोड़ रखा है। तुम्हारी आहो फगा सुनकर कहीं जालिम यहाँ न पहुंचाए और तुम्हें पकड़ कर ले जाए, तुम्हें भी शहीद कर दें। बच्चे खामोश हो गए। उसी शाम बीरो दरवाजा इराकीन से एक काफिला मदीनतुल मुनव्वरा रवाना होने वाला था। काजी शुरैह ने अपने बेटे असद को बुलाया, कहा, ए असद इधर आओ, इन बच्चों को जो है ले जाओ और किसी मुहिब्बे नेक अहले बैत के सुपुर्द कराना ताकि ये दोनों बच्चे बाहिफाजत मदीनतुर रसूल पहुंच जाएं। कुर्बान जाऊं, काजी शुरैह के बेटे असद ने इन दोनों बच्चों को लिया और लेने के बाद जैसे ही काफिला के पास पहुंचता है वो गर्दे काफिला दूर तक पहुंच चुका था। असद ने कहा, ए बेटे देखो वो गर्दे काफिला जा रहा है, जल्दी करो, जाकर दौड़ कर मिल जाओ। चुनांचे वो गर्दे काफिला दिखागा। बच्चे अभी थोड़े ही भागे थे कि वो गर्दे काफिला नजर से ओझल हो गई। रात भर बच्चे चलते रहे, भूख व प्यास से निढाल हो चुके थे, पाँव में छाले पड़ चुके थे, मगर वो नन्हे मुन्ने बच्चे इस तरह से चल रहे थे कि नाना का मदीना करीब आ रहा है। रात भर चलते रहे। चलते चलते सुबह का उजाला फैलता है। एक कूफी ने इन्हें देख लिया, पहचान गया, ये मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद हैं, इन्हें पकड़वा कर इनाम उजरत हासिल किया जाए। चुनांचे ने फौरन पकड़ लिया और इब्ने ज़ियाद बदनियात के दरबार में इन मासूम बच्चों को पेश कर दिया था। और इब्राहिम और मोहम्मद को इब्ने ज़ियाद ने जेल में बंद कर दवा दिया। लेकिन अल्लाह अकबर, जेल का जो दारोगा था मशकूर नामी, वो खुदा तरस भी था और मुहिब्बे अहले बैत भी था। सुभान अल्लाह। जब इन बच्चों को जेल में देखा तो मशकूर नामी दरोगा ने उस फैसला कर लिया, अपनी जान जाए तो जाए, अहले बैत की मोहब्बत में ये जान जाएगी तो जाएगी, लेकिन इन बच्चों पर हम आंच नहीं आने दी। इन बच्चों को रात भर जेल के अंदर प्यार किया था उस दारोगा ने, मशकूर नामी।
नहलाया धुलाया, उनकी जुल्फे सवारी, उसी जेल में उन लोगों को खाना खिलाया और रात की तारीकी में अपनी अंगूठी भी दी, ये मेरा अंगूठी ले लो और ये रास्ता कादसिया तक जाता है, सीधे जाओगे कादसिया पहुंचोगे, वहां पे थाने में मेरा भाई कोतवाल होगा, ये मेरी अंगूठी दिखाना, वो तुझे बाहिफाजत मदीनतुर रसूल पहुंचाने को। नाम से मशहूर नामी दरोगे ने बगैर किसी खदशा के अपनी जान कुर्बान करने के, उसने इन बच्चों के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया था। इन्हें नहला धुलाकर जुल्फे सवारी और खाना खिलाने के बाद रात की तारीकी में एक ऐसी जगह पे ले जाके कहा, बेटे ये सीधा रास्ता कादसिया पहुंचता है, तुम जाओ वहां हमारे भाई से अंगूठी देना और कहना तुझे वो पहुंचा देंगे। चुनांचे बच्चे रात भर चले थे, लेकिन चूंकि इनकी तकदीर में भी शहादत का जाम लिखा हुआ था, इसे कौन मिटा सकता था। बच्चे यतीम थे, कितना भागते, भूख और प्यास से निढाल थे। एक तो बाप की शहादत उनके नगरदिश पर किनाया थी कि मेरा बाप शहीद हो गया, हमारा कोई नहीं है। रात भर चलते रहे और सुबह की जब उजाला फैली है तो देखते हैं कि जहां चले थे वहीं पर पहुंच चुके हैं। चुनांचे अभी लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। सामने ही एक बहुत बड़ा खोह था, उस दरख्त की खोह में दोनों भाई आपस में बगलगीर होकर उस खोह के अंदर बैठ जाते हैं। सामने ही चश्मा था, एक औरत उस चश्मे पे पानी लेने के लिए आई तो दो बच्चों का अक्स नजर आया। जब उन बच्चों पे खोह पे नजर डाली, देखा कि दो बच्चे आपस में बगलगीर होकर हिचकियां बांधे हो रहे हैं। उस औरत ने कहा, ये बच्चे तुम कौन हो? बच्चे सहम गए, कहा घबराओ नहीं, तुम जवाब दो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। बच्चों ने कहा हम फर्जंदाने मुस्लिम है। वो औरत कहने लगी, बच्चे घबराओ नहीं, आओ, जिस घर की मैं खादिमा हूँ वो औरत भी मुहिब्बे अहले बैत है, बड़ी नेक है, तुम्हें देखेगी प्यार करेगी, खुश हो जाएगी, मुझे भी इनाम उजरत देगी। चुनांचे वो खादिमा औरत इन दोनों बच्चों को हारिस के घर ले गई। हारिस की बीवी ने जब देखा इन दोनों बच्चों से बड़ा प्यार किया, पांव में छाले पड़ चुके थे, जुल्फे सवारी, नहला धुलाकर एक कमरे में उसे लिटा दिया। बच्चे थके थे, जो ही थके तो नींद आ गई। चुनांचे बच्चे थक चुके थे और इधर थोड़ी ही देर के बाद उसी औरत का शौहर जो जहन्नमी था इन बच्चों की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। वो भी घर पहुंचा, अपनी बेगम से खाना तलब किया, खाया और सो गया। थोड़ी रात गुजरी, अचानक घर से रोने की आवाज आने लगी। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को उठाया, ए बड़े भाई आप क्या कह रहे हो? अब्बा मुस्लिम तो शहीद हो गए, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझे मदीना शरीफ कौन पहुंचाएगा? चुनांचे इतना सुनना था कि बड़ा भाई उठा और छोटे भाई को अपनी गोद में ले लिया। ए मेरे भाई, बात ये नहीं है, बल्कि बात ये है कि अभी इमामुल अंबिया नाना जान की जियारत से मैं मुशर्रफ हुआ हूँ। नाना जान पूछ रहे थे, ए इमाम मुस्लिम, तुम तो हमारे पास आ गए हो, अपने बच्चों को किसके सपुर्द कर आए हो? तो अब्बू जान ने जवाब दिया था, थोड़ी ही देर में वो भी आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई कि हम सबकी शहादत भी बिल्कुल करीब होने वाली है। जैसे ही रोने की आवाज आई है, दोनों भाई रो रहे थे, अब्बू मुस्लिम मुस्लिम कह के पुकार रहे थे। अचानक वो हारिस बकबक उठकर घर में बैठ गया और चिराग जलाकर
उस कमरे की तरफ चला है जहां ये दोनों बच्चे अब्बा अब्बा कह के रो रहे थे। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, पूछा तुम कौन हो? बच्चों ने इस घर को अपने मुहिब्बों का घर समझ रखा था। साफ साफ बयान कर दिया, हम फर्जंदान मुस्लिम है। इस पर वो जालिम गुस्सा हुआ कि रात भर मैं तुम्हारे तलाश में फिरता रहा, यहाँ तक कि मेरे घोड़े ने भी जान दे दी और तुम आराम से मेरे ही घर में आराम कर रहे हो। फिर उसने गरजदार आवाज में इन बहकते हुए फूलों को अपनी तरफ बुलाया है। कत्ल के खौफ से उठे न अली के प्यारे, इस तवक्कुफ पे सितमगर ने तमाचे नारे। दस्त पे दांत से एक भाई का गेसू खींचा, दूसरे भाई का एक हाथ से गेसू खींचा इस तरह के पुरजे हुए कुर्ते सारे। मुंह के बल गिर पड़े वो बुर्ज शरफ के तारे। एक हुसैन इब्ने अली याने बसदियास कहा, दूसरे भाई ने या हजरत अब्बास कहा जा इधर आओ। दोनों नाज परवरदे मुस्लिम बच्चों के जुल्फे पकड़ ली और थप्पड़ मारने लगा। जब बीवी ने देखा अपने शहर के खावंद की बेरहमी तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अरे जालिम, इनके सर पे तमाचे न लगा। ये अहले बैते रसालत के महकते हुए फूल है, ये चबनिस्तान अहले बैत के गुलदस्ता है। अरे जालिम सैयद है सैयद, तमाचे न लगा। कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा, बस अरे बस के जमीन अब तो हिली जाती है। ले मुझे फातिमा गमगीन नजर आती है। ए जालिम अभी भी वक्त है, तू दौलत के लालच में अंधा मत बन। बरोज़े कयामत नाना जान की शफाअत से तू महरूम हो जाएगा। अहले बैती अतहार है, इनकी ताजीम कर ले ताकि जन्नत तेरे मुकद्दम तेरे नाम से मकदूर हो जाए। लेकिन उसके दिल के अंदर शायद पत्थर था। उसने कहा कि नहीं, इब्ने जियाद ने बहुत बड़ा इनाम दे रखा है। चुनांचे दोनों भाई की जुल्फे आपस में कस दी, एक खच्चर पे सामान की तरह लाद लिया, नहरे फुरात की तरफ लेकर चला है। तलवार उठाया है कि छोटे भाई का सर तन से जुदा कर दे। हारिस की बीवी फिर हाँफते कांपते आ गई, तलवार के वार को पकड़ लिया, उसका हाथ भी कट जाता है। एक तलवार का ऐसा झपटा दिया हुआ औरत बेहोश होकर गिर जाती है। बेचारी औरत जितनी बचाना चाहती थी, इन बच्चों को बचाई थी, लेकिन ये जालिम उठा है और जैसे ही छोटे भाई की तरफ बढ़ा है कि बड़ा भाई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तू हमारी यतीमी पे रख, तू हमारी गरीबी पे नजर रख। मेरे बाप शहीद हो गए, हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, लिहाजा मुझे छोड़ दे। लेकिन उस जालिम ने छोटे भाई की तरफ बढ़ा था तो बड़ा भाई ने कहा था, सुनो सुनो, अगर तुम्हें कत्ल ही करना मंजूर है तो पहले मेरा सर कलम कर ले, छोटे भाई का लाशा मैं नहीं देख सकता। चुनांचे वो जालिम आगे बढ़ा है, एक तलवार का वार किया है और बड़े भाई का सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का कटा हुआ गला देखा तो अपनी गोद में ले लिया था। रो के कहता है, अब्बू मुस्लिम, हाय मेरा भाई शहीद हो गया, अब मुझे मदीना कौन पहुंचाएगा? मैं रोऊंगा तो चुप कौन कराएगा? इतने में जालिम ने दूसरा वार किया था, छोटे भाई का सर भी जमीन पे तड़पने लगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब क्या करता, धर को वही फेंक दिया है और दोनों सर इमाम मुस्लिम इब्राहिम और मोहम्मद का एक टोकरी में रख लिया है और बड़े खुशी से इब्ने जियाद की दरबार में चला है। इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचने के बाद कहा, ये देखिए आपके दुश्मन का मैं सर लेकर आया हूँ, अब मुझे इनामो किराम चाहिए। इब्ने जियाद ने कहा, कौन से दुश्मन का तू सर लेके आया है? कहा, इब्राहिम और मोहम्मद इमाम मुस्लिम के दोनों बेटों का सर है इस टोकरी में। तो इब्ने जियाद बदनियाद ने कहा, बेवकूफ, तुमने उनका कत्ल क्यों किया? तुमने उन्हें पकड़वा कर क्यों नहीं रखा? कहा, मुझे उम्मीद था कि कोई
گولی چھوڑا لیتا. کہا تو مجھے خبر کر دیا ہوتا, میں سپاہیوں کے ذریعے سے منگوا لیا ہوتا. تو نے اپنی منمانی سے ان کی گردن کیوں اڑاتی؟ اگر یزید مجھ سے مطالبہ کر دیا امام مسلم کے بچوں کو حاضر کیا جائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ تو اپنی مرضی کا کام کیا ہے. ایک مقاتل نام کا ظالم تلوار لیے ہوئے کھڑا تھا. ابن زیاد بدنہاد نے کہا اس ظالم کی بھی گردن مار دے. اس مقاتل نام نے تلوار کا وار کیا اور اس ظالم کا بھی گردن وہی کٹ گئی. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. اب جانتے ہو کیا ہوا؟ امام مسلم کے دونوں بچے بھی شہید ہو گئے. تب تک کہ یہ خط امام علی مقام کو جا ملا. ذرا بول دو سبحان اللہ. امام مسلم کا خط میرے آقا حسین کو جیسے ہی ملا, میرے امام نے کہا اب جلد سفر شروع کرنا چاہیے. اس لیے یہ کوفیوں کے خطوط کا میں بھروسہ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میرا بھائی امام مسلم کی تحریر ہے. امام نے سفر شروع کیا. جب کوفہ 2 منزل پہ تھا تو ایک کوفہ کی جانب سے ایک شخص آیا, امام علی مقام سے ملاقات کی. میرے امام نے پوچھا بتاؤ کوفہ کے حالات کیا ہے؟ قربان جب اس وقت موبائل نہیں تھا, ٹیلی فون کا سسٹم نہیں تھا. اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. یا امام, یہ پورے کوفی دھوکہ ہے. آپ کے بھائی کے ہاتھ پر آپ کے نام پہ سب لوگوں نے بیعت بھی کیا, لیکن ابن زیاد کا قبضہ ہوا. اس نے سب کو ڈرایا اور دھمکایا. سب لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور آپ کے بھائی امام مسلم کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. امام علی مقام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. پھر میرے امام نے پوچھا کہ ان کے 2 بیٹوں کا کیا حال ہے؟ تو اس کوفہ کے قاصد نے بچایا تھا حضور ان بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. میرے امام خیمے میں تشریف لے گئے. امام مسلم کی بچی آ گئی. میرے امام نے گود میں لے کے رونا شروع کر دیا. تو اس بچی نے کہا کیا چچا جان آپ میرے کو گود میں لے کے ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کی طرف رویا جاتا ہے؟ ہمارے ابا جان تو خیریت سے ہے. میرے امام نے فرمایا تھا بیٹی آج سے میں تمہارا چچا بھی ہوں اور تمہارا ابا بھی میں ہوں. جب قرآن جاؤ ظالموں نے تمہارے ابو جان کو شہید کر دیا ہے. یہ سن کر بچی رونے لگی. پھر اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھا تھا تو کہا بیٹی جب تمہیں بھائیوں کی یاد ستائے تو میرے علی اکبر اور اصغر کو دیکھ لینا. چنانچہ آپ نے صبر کی تلقین کی. اس سے بہت بڑا امتحان ہمیں اور دینا ہے. چنانچہ پھر یہ قافلہ منزل کی طرف روانہ ہوا. حدیث راوی کا بیان ہے کہ یہ منزل پہ چلتا چلتا 2 محرم الحرام 61 ہجری کو ایک ایسے میدان میں قافلہ پہنچتا ہے جہاں پہنچ کر سواریاں خود بخود رک گئی تھی. میرے امام نے کہا یہ قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ اس میدان کو کیا کہتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا اس میدان کو میدان ماریہ کہا جاتا ہے. میرے امام نے فرمایا نہیں, اس میدان کا کچھ اور بھی نام ہے. تو کسی نے کہا حضور اس میدان کو میدان کربلا بھی کہا جاتا ہے. میرے امام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور آپ نے فرمایا بس کرو, یہی اپنے اپنے خیمے نصب کر لو, کیونکہ یہی وہ میدان ہے جہاں میرا علی اکبر قربان ہو جائے گا. قاسم کی جوانی لٹے گی, انہوں محمد کی لاش تڑپے گی, قاسم کی جوانی تڑپ اٹھے گی, میرے سروں کو لو کے نیزہ پہ چڑھایا جائے گا. یہی وہ کربلا کا میدان ہے. جیسے ہی کربلا کے میدان میں میرے امام اترتے ہیں اپنے اپنے خیمے لگاتے ہیں. ادھر حور بن ریاحی 500 سپاہی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا. کہا یا امام میں آپ کی طرف آیا ہوں, آپ یا تو یزید کی بیعت تسلیم کریں یا ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. قربان جاؤں. میرے امام نے کہا اے حور کیا تو جانتا ہے میں یہاں خود نہیں آیا؟ یہ دیکھ. آپ نے 150 خطوط اس کے آگے رکھ دیے. کہا حضور
लाइल्मी जाहिर की, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ इतना धोखा हुआ है, लिहाजा ज़ोहर का वक्त का नमाज का वक्त सामने आया है। चुनांचे हक के इमाम ने इमामत फरमाई है। मेरे इमाम ने फरमाया हुआ तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? कहा हाँ मेरे आका आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। आप हजरत हूर ने हजरत इमाम अली मकाम के पीछे ज़ोहर और असर पढ़ी थी, और फिर हूर ने कहा था या इमाम रात की तारीकी में मैं अपनी फौज को लेकर वापस जाता हूँ, आप चाहे ईरान चले जाए चाहे कहीं चले जाए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। चुनांचे मेरे इमाम ने कहा था देखो मेरा जंग करने का कोई इरादा नहीं है, ये खतूत आए हैं तब मैं आया हूँ। हजरत जनाबे हूर ने इब्ने ज़ियाद बदनहात के दरबार में पेश किया था, इमाम अली मकाम का मसला तो सुलझा हुआ है इसलिए जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिमर और इब्ने ज़ियाद ने कहा तू सिपाही है, तू होता कौन है फैसला करने वाला, इसलिए कि तेरी ड्यूटी है तू ड्यूटी कर। इतना सुनना था कि हजरत हूर ने कहा कि तुम क्या वाकई मेरे इमाम के साथ जंग करोगे? कहा जंग नहीं करूंगा, करबला के मैदान में तीरों की बरसात भी होगी, सरों की बारिशें होगी, नेज़े के वार भी चलेंगे, लेकिन मेरे इमाम अली मकाम करबला के मैदान में रुक चुके हैं। 7 मुहर्रमुल हराम का दिन है, आप घबराए नहीं, बस थोड़ी देर में मैं खत्म करूंगा, जरा सा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 7 मुहर्रमुल हराम को इस्म जिल जूशन ने इब्ने ज़ियाद का तीसरा हुक्मनामा लेके पहुंच जाता है कि नहरे फिरात पे पहरा लगा दिया जाए। उस जालिम को ये पता नहीं था कि मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। इधर सिमर जिल जूशन आया है, या इमाम नहरे फिरात पे भी पहरा लगा दिया गया है, आप यजीद की बैत करें या हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मेरे इमाम ने फरमाया सुन मुझे एक रात की और मोहलत दी जाए। चुनांचे 9 मुहर्रमुल हराम को बातचीत का ये मामला चलता रहा। इब्ने ज़ियाद की तरफ से बैत करने का इसरार था, इमाम अली मकाम की तरफ से इनकार था। फिर चौथा हुक्मनामा पहुंचा है तो मेरे इमाम ने कहा जब तुम लोग जंग ही करना चाहते हो तो कल 10 तारीख मुहर्रमुल हराम के दिन, कल 10 तारीख को तुम हमसे जंग कर लेना। अल्लाह अकबर। और ये किसी डर और खौफ की बुनियाद पर मेरे इमाम फरमाते हैं मैंने नहीं कहा, मैं इसलिए सोच रहा हूं कि आज रात जी भर के रब की इबादत कर ली जाए, आज बंदगी कर ली जाए। कुर्बान जाओ, आप अपने घर वालों को तैयारी का हो, आप अपने घर वालों को सब्र की तलकीन फरमाते हैं। रात भर खेमे में इबादतें की गई हैं, कुरान करीम के खूब लोगों ने मजे लूटे हैं। तहज्जुद की नमाज भी आपकी कज़ा नहीं होती थी, सब लोग तस्बीह व तहलील थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। कुर्बान जाओ, इसी आशना में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली अकबर से कहा था अली अकबर जाओ मैदान करबला का नक्शा देख कर आओ। हजरत अली अकबर मैदान करबला जब पहुंचे थे देखते हैं सारा मैदान खाली है, यजीदियों के खेमे में शोर मचा हुआ है, जंग की सुबह तैयारी हो रही है, आले रसूल के काफिला से कुरान की तिलावत की सदाएं आ रही है। हाले हजरत अली अकबर मैदान करबला में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं एक ज़ईफा औरत निकाब पोश है जो अपने आंचल से मैदान करबला में झाड़ू दे रही थी। हजरत अली अकबर देख के आए, आने के बाद अपने इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं। मेरे इमाम ने कहा अली अकबर मैदान करबला का नक्शा तुमने देखा, मैदान जंग का तुमने नक्शा नहीं देखा, लेकिन करबला के मैदान को तुम देख कर आए हो, बताओ क्या हाल है। हजरत अली अकबर फरमाते हैं ए बाबा जानी मैंने देखा है करबला की मैदान में एक ज़ईफा औरत निकाब पोश है,
है जो अपने आंचल से करबला के मैदान की झाड़ू दे रही थी, बहा रही थी। इतना सुनना था कि मेरे इमाम के आंखों से आंसुओं का सैलाब बनने लगा। हजरत अली अकबर ने पूछा, ए अब्बा रोने की वजह क्या है? कुर्बान जाऊं मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए बेटा अली अकबर क्या तू जानता है वो बूढ़ी औरत, वो ज़ईफ़ा निकाब पोश खातून जो झाड़ू दे रही थी कौन है? कहा, ए अब्बा जान मैं नहीं जानता। मेरे आका हुसैन ने फरमाया कि वो मेरी अम्मी जान थी, तेरी दादी थी। कहा, ए अली अकबर तू जानता है वो अपनी आंचल से क्यों झाड़ू दे रही थी? कहा, नहीं है बाबा जान, मेरे इमाम फरमाते हैं उसे अच्छी तरह से मालूम है। कल इसी मैदान में जब मेरा बेटा जख्मी होकर जमीन पर उसे हाथ नहीं रहेगा कि वो बचाएगा, जब सर के बल गिरे तो कहीं उसके माथे में कोई कंकर न चुभ जाए, कोई कंकर न चुभ जाए। ए मुसलमान सोच तू सही, ये फातिमा जहरा झाड़ू दे रही थी। ए जालिमा जब तुमने हुसैन को नेजा मारा होगा उस वक्त फातिमा जहरा के दिल पर क्या गुजरी होगी, हजरत हैदर कर्रार के दिल पर क्या गुजरता होगा, इमामुल अंबिया कब्र में किस तरह से इसको बर्दाश्त करते होंगे। लेकिन जालिमो तू दौलत के लालच में अंधा हो गया था, तू सल्तनत की लालच में अंधा हो गया था, नवासे रसूल को तू पहचान नहीं सका। और फिर उसके बाद मेरे इमाम आए, सारे साथियों को जमा किया, कहा, ए मेरे साथियों तुम सबका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला बहुत लाजवाब है, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया कौन अदा कर सकता है? ये बताओ कि तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। अब कल इस मोड़ इस बात पे आ चुकी है कि कल जंग जरूर होनी है। मैं तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, हर हाथ के साथ दिया है, मैं तुम लोगों को बखुशी इजाजत दे देता हूँ, इसलिए कि यजीद सर मांगता है तो मेरा, हाथ मांगता है तो मेरा, बैत का मुतालबा तुम लोगों से नहीं है, हुसैन से है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं हाथ में हाथ नहीं दे सकता, अपना सर जरूर दे सकता हूं। इसलिए तुम सबको बखुशी इजाजत है कि तुम अपने अपने घर लौट जाओ। मैं तुम लोगों से कोई शिकायत भी नहीं है, बल्कि तुम लोगों की मैं सिफारिश भी करूंगा, नाना जान के हाथों से जावे कौसर भी तुम्हें पिलाऊंगा, तुम लोग जा सकते हो। कुर्बान जाऊं हजरत मुस्लिम इब्ने सजा सदी थे, हबीब बिन मुजाहिर थे, जितने आपके साथी थे, हम सब सुन्नियों का करोड़ों सलाम हो इसे साथियों पे। उन लोगों ने कहा था, ए इमाम मैं आपको इस करबला के मैदान में छोड़कर चला जाऊं, क्या मैं वो जिंदगी नहीं जीना चाहता? आपके साथ कट मर कर बता दूंगा जमाने को कि हम अहले बैते अतहार की वो मोहब्बत रखते हैं कि इमाम के सर देने से पहले अपनी गर्दन को इस्लाम के नाम पे दी जाएंगे। कुर्बान जो मेरे इमाम ने सजदे शुक्र अदा किया, परवरदिगार तू हर मुसीबत में मेरा भरोसा रहा है, ये हमारे दोस्त के सिला है। कुर्बान जाऊं मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुबह का वक्त हुआ, आपने अपने हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म फरमाया, अली अकबर आजान पढ़ो। कुर्बान जाऊं हजरत अली अकबर ने सदा लगाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैदान करबला में आवाज देने वाला कौन है? ये शबीह पैगंबर है, हजरत अली अकबर की आवाज गूंजी है। कुर्बान जाऊं सब लोग आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ते हैं, सुबह होते ही नकारे सुबह होते ही मेरे इमाम मैदान करबला में पहुंचते हैं। ए यजीदियों सुनो, तुम मुझसे जंग करना चाहते हो, जानते हो मैं किसका बेटा हूँ? अरे मैं फातिमा जहरा का फर्जंद हूँ, मैं उस अली का बेटा हूँ जिसको दुनिया रूहानी पेशवा मानती है। क्या तुम नहीं जानते इमामुल अंबिया जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मेरा बेटा हुसैन है, मुझे हुसैन को अपना बेटा करार दिया है, मेरे लिए अपने खुतबे को बंद किया है, मेरे लिए सजदे को तूल दे दिया है। क्या तू नहीं सुना है? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ए यजीदियों मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन मत करो और न तुम्हारे
पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। ये बताओ 1,24,000 कमरों में अंबिया व रसूल इस खाकदाने की पे आए, किसी नबी का नवासा नहीं था। मैं तो खुद तुम्हारे नबी का नवासा हो। तुम मेरे साथ जंग कैसे करते हो? किस लिए जंग करने के लिए तैयार हो? क्या मैं तुम्हारे बच्चों को मारा हूँ? क्या मैंने तुम्हारी जमीनें हड़प की है? क्या मैंने तुम्हें गालियां दी है? लेकिन तुम सब मुझसे क्यों बदला लेना चाहते हो? तुम सल्तनत की हुकूमत में आदी हो चुके हो। इतना सुनना था। हजरत जनाबे हूर ने देखा, उनके दिल पे अजीब कैफियत तारी हो गई। सिपाही यजीद में से किसी ने कहा, हूर तू आज को क्यों बढ़ा रहा है? तू तो मेरी लश्कर का सिपह सलार है, तू बड़ा चापाज सिपाही है। हजरत हूर ने कहा था, मैं देख रहा हूँ एक तरफ जहन्नम की दहलीज है और एक तरफ जन्नत की दहलीज है। मैं सोचता हूँ कि जहन्नम की दहलीज छोड़कर अब हूर जन्नत की दहलीज को चूमने की सआदत हासिल कल आप शहादत का मंजर समाप्त करेंगे। हजरत हूर की पहली शहादत होगी। किस तरह से मैदान करबला में गए अल्लाह तबारक व तआला। आप जानते हैं कल 9 मुहर्रमुल हराम का दिन होगा और जो हजरात ये नफली रोजा है रखना चाहें, फर्ज नहीं है कि जबरदस्ती उसको रखवाया जाए। ये नफली रोजा है, आप रखो। ये सुन्नत मुस्तफा खैरुल अनाम है। सुभान अल्लाह। 9 और 10। इसलिए ये रोजा क्या है? हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत फरमाते हैं कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए तो लोग यौम आशूरा के दिन रोजा रखे हुए थे। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने कहा, आज के दिन तुम क्यों रोजा रखते हो? तो लोगों ने बताया कि आज ही का वो दिन है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को फतहयाबी नसीब हुई और फिरऔन दरियाए नील में गर्क हो गया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुमसे ज्यादा हम मूसा अलैहिस्सलाम के मोहब्बत के हकदार हैं। इसलिए आने वाले साल हम भी रोजा रखेंगे और आपने रोजा रखने का हुक्म भी दिया। लेकिन सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम रोजा तो रखते हैं लेकिन यहूद और नसारा से मुशाबियत हो जाएगी, इसलिए कि वो एक रोजा रखते हम भी एक रोजा रखें। तो मेरे आका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आइंदा आने वाले साल में हम 9 मुहर्रमुल हराम का भी एक रोजा रखेंगे और 10वीं का भी रोजा रखेंगे। लेकिन चूंचे रखिए तो 2 रोजे रखिए। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि 2 रोजा रखने से यहूद और नसारा की मुशाबिहत न हो सके। इसलिए कल आप रोजा भी रखें और इंशाअल्लाह हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी वो फरमाते हैं कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यौम आशूरा का रोजा 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। 1 साल के गुनाहों का कफारा है। पता नहीं आने वाले साल में ये रोजा हमें मयस्सर आएगी कि नहीं आएगी। और आप जानते हो यौम आशूरा के दिन जो ढोल तासे बजाने वाले हैं बजाते रहे, लेकिन जो असल मकसद है वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। 4 रकात नमाज यौम आशूरा के दिन जो इस तरह पढ़े सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास अगर वो पढ़ता है तो कसम खुदा की उसके 50 साल के गुनाह माफ हो जाया करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इमाम अली मकाम यौम आशूरा के दिन की फजीलत क्या है इंशाअल्लाह वो भी बयान कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन।